برحسین میں میزبان اختر عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، آج اپنی گفتگو کے ابتدائیے کو اسے ایک جملے تک محدود رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات سبحانہ و تعالی اگر کسی پر مہربان ہو جائے نا تو اس کی زبان پر ذکر محمد و آل محمد کو جاری فرما دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہماری ہر سانس ذکر محمد و آل محمد میں بسر ہو جائے، ان کی یاد میں بسر ہو جائے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ان ہستیوں کی یاد میں بسر ہو جائے کہ جن کے ناز اٹھاتے ہوئے خود اللہ کی رسالت متعدد مقامات پر نظر آ رہی ہے۔ کہیں آتے ہوئے حسین کو مسجد نبوی میں دیکھ کر ممبر سے فرش مسجد نبوی پر آ جانا یہ ادائے محمد مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے لیے کسی سعادت سے کم نہیں کہ آج ہم ایک ایسی بست مقدس میں تشریف فرما ہے کہ جہاں علماء کرام کا ایک منتخب پینل تشریف فرما ہے۔ آئیے آج بغیر کسی تمہید کے آپ کو اپنے مہمانان ذی وقار کی خدمت اقدس میں لے کے چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہماری پہلی مہمان شخصیت ایک عالمہ، ایک معلمہ اور ایک ذاکرہ شخصیت ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج محترمہ ہیرا شیرازی صاحبہ ہماری اس ایپیسوڈ میں، ہماری اس بزم میں شریک ہوئیں۔ آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ناظرین محترم، حسب روایت یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے افتخار ہیں، ایک بہت ہی حسین آواز ہیں، میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، قریب القلب ہیں، جناب شری رضا صاحب، آپ آج پھر تشریف لائے، آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ محترمہ ہیرا شیرازی صاحبہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز آپ سے کریں۔ دیکھیے، یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ جب حضرت امام حسین کی عالی مقام کی ذات مبارک مدینے سے مکہ تشریف لے جا رہی تھی تو کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے قبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لائے، اور وہاں گریہ وزاری کی جو کیفیت ہے وہ تو آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور پھر اس بارگاہ سے نکل کر اس ایک غریب قبر کی طرف آنا کہ جو اس صاحبزادی کی قبر ہے جس کے احترام میں خود رسالت اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی تھی، اور قبر بطول سلام اللہ علیہا پر، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر روایت ہے کہ آپ سسکیوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ زمانہ جسے روئے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جسے رو رہے ہیں اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ تو کیا مقام، کیا منزلت ہوگی اس ہستی کی جس کے حوالے سے بقول شاعر، چونکہ میرے علم میں ہے کہ آپ کو بہت سے اشعار ازبر ہیں اور آپ کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے جب آپ اشعار پڑھتی ہیں، تو بقول شاعر شری رضا صاحب کہ رو کے سرور نے کہا، اس منظر کو ذہن میں رکھیں اگر ناظرین بھی، کہ رو کے سرور نے کہا آنکھ تو کھولو اماں، اتنی خاموش ہو کیوں مجھ سے تو بولو اماں، یاد نانا کی جو آئی ہے تو رو لو اماں، اور تھک گئی ہو تو ذرا دیر کو سو لو اماں، اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلا ہوگی نہ آئے گا حسین۔ تو شرائی صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آخر ایسی کون سی محبت ہے جو اس بیٹے کو اپنی اس ماں سے ہے، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں اس ذکر میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے گفتگو کے آغاز میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آل یاسین کی مدحت کا قرینہ دے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے، سبحان اللہ، اور میری سیرت میں وہ کردار ابو ذر شامل مثل سلمان مجھے دہر میں جینا دے دے، سبحان اللہ، اور ہاتھ ایسے ہو جو عباس کا پرچم تھامے، ہاتھ ایسے ہو جو عباس کا پرچم تھامے، جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے، سبحان اللہ، اور میری نظروں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا، میری نظروں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا، مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے، سبحان اللہ۔ اور جس ہستی کا آپ نے تذکرہ کیا، کیا شان ہے اس ہستی کی، اور کیا انسیت اور کیا محبت اللہ کے رسول کو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ وہ بیوی جس کو پروردگار عالم بذات خود مختلف القابات سے پکار رہا ہے، کبھی بیوی کو پروردگار عالم پکارتا ہے سیدہ، فاطمہ، طاہرہ، سورہ کوثر، ام الحسنین، ام المحسن، ام الائمہ، راضیہ، مرضیہ، بطول، عقلمہ، حاکمہ، قائمہ، سائمہ، علیمہ، حلیمہ، سلیمہ، قاریہ،
राजिया मर्जिया बतूल आलिमा आबिदा। क्या शान है उस बीवी की, वो क्यों ना हुसैन जैसी हस्ती पाल कर कायनात को दे दे जिसके आगोश में इमाम हुसैन परवान चढ़े हो, जिसने यूं कहिए कि इमाम हुसैन वो हस्ती हैं कि जिनको सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर तथहीर की ठंडी छांव जिस हुसैन ने महसूस की हो। और फातिमा ज़हरा इत्तेफाक से अभी शहरी रजा यहाँ तशरीफ फरमा है और ये उस प्रोग्राम में भी तशरीफ फरमा थे जिसमें हम जनाब मौलाना अकबर दर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने भी तहारत और तथहीर का जो इस्तेमाल किया वही गुफ्तगू वही तर्ज सुखन माशाल्लाह, यानी बाकायदा एक तसलसल एक मुसलसल होता चला जा रहा है। ये इनके जिक्र का सबका जाहिर है कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं अल्लाह तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब इंसान अपनी महदूद कुव्वतों के साथ उसका जिक्र करेगा, वो परवरदिगार है, वो अपनी लामहदूद कुव्वतों के साथ उसका जिक्र करेगा। जिस तरह से इमाम हुसैन ने खानवादा रिसालत में अल्लाह का जिक्र किया, कायनात में किसी ने ऐसे अल्लाह का जिक्र नहीं किया, तो अब अल्लाह ने उनके जिक्र को इस तरीके से बाकी रखा कि कायनात के जर्रे जर्रे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र। क्या खूबसूरत अंदाज है। मैं यहाँ से कोई किसी कलाम की फरमाइश करूंगा। हुसैनियों की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान इलाहा इल्लल्लाह यजीदियों को सजा ला क्या दोनों मिसरों में हक और बातिल अलग दिखाया आपने। वाह वाह वाह। हुसैन पाक से शक पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ दीजिए शहरी इस शेर को आप। वाह वाह। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शहरी रज़ा कि ये जो आपने पढ़ दिया है आपकी आंखों में नमी है। मैं तो कहता हूँ ये वक्त कबूलियत है, आप हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। ये कि आंसू बड़ी सनद होते हैं और ये बड़े नसीब वालों को नसीब होते हैं। तो शिराजी साहब और फिर खवातीन का क्या किरदार है, जाहिर है हम अपने मौजू पर आते हैं कि करबला पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करें उस ज़ैनब आलिया बीबी को कि सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बुलंद सर को, कटे हुए सर को जो सलाम पेश करने वाली बीबी है वो ज़ैनब आलिया, जिनके लिए कहा गया रूह वफा मिजाज हया पे करे हिजाब, वो जिसके साए से भी गुरेजा था आफताब, लेकिन गहन में देख के ज़हरा का माहताब आया कुछ इस तरह से तबीयत में इनकलाब, बादज हुसैन सब्र का अक्काज बन गई, बिनते अली जलाल में अब्बास बन। हुआ कुछ यूं कि गिरते हुए अलम को संभाला कुछ इस तरह, भाई के कुएं से दी को उजाला कुछ इस तरह, नुक्के पिदर में लहजे को ढाला कुछ इस तरह कि हर बात जुल्फ़िकार की झंकार बन गई, पर्दा नशी थी हैदर कर्रार बन गई। ये वो बीबी। और जब हम बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा का किरदार देखते हैं तो ये वो है जो शरीकतुल हुसैन है, ये वो है जो सानिया ज़हरा है, ये वो बीबी के जब लाशें बिखरे हुए मैदान करबला में मैं बाहैसियत खातून मुखातिब हूँ तमाम खवातीन से कि आइए देखिए करबला की इन खवातीन को कि अगर किसी मस्तूर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को एक छोटा सा दूध पीता बच्चा भी अल्लाह की राह में पेश करना पड़ा, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह को लब्बैक कहते हुए, हक की आवाज को लब्बैक कहते हुए तो ले आई उस बच्चे को पेश कर दिया।
किरदार, माफ कीजिए, यहाँ तक कि अपनी भी पूरी नस्ल को अपनी कुर्बान पूरी नस्ल बीवी जाहिर है ये वो बीबी है जिन्होंने अपना सब कुछ, जिन 4 हस्तियों में शुमार है हजरत मुस्लिम बिन अकील, बीबी उम्मुल बनीन और बीबी उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अपना सब कुछ, बीबी ज़ैनब आलिया उन हस्तियों में शामिल है जिन्होंने अपने 2 बेटे थे दोनों अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। और आप देखिए कि खातून, कहीं पर हम देख रहे हैं कि जब इमाम हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद है तो बीबी ज़ैनब आलिया इस तरह का मरसिया और ऐसे आशार पढ़ रही हैं। आप खुद अरबी दान है कि बीबी के जो आशार है कि उनको सुनकर जिगर कटने लगता है, कलेजा हिल जाता है, लेकिन जब सब्र, इस्तिकामत, शहामत, शुजाअत, सदाकत की मंजिल पर बीबी को देखते हैं तो फिर बीबी सानिया ज़हरा बनकर मैदान में आ रही है और बिखरे हुए लाशों के दरमियान खड़ी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे को बुलंद कर कर, उस हुसैन के लाशे को जो हुसैन रसूल अल्लाह के सीने पर लेटा करते थे, जो रसूल अल्लाह के कुरान के हामिल कल्ब अतहर की पर लेट कर उसकी धड़कनों को अपने कल्बो जिगर में जमा किया करते थे, जिनको रसूल अल्लाह के दोष पर सवारी करना नसीब हुई, जिनको बाबे मदीनतुल इल्म की इल्मी और रूहानी सोहबत नसीब हुई, जिनकी नानी खतीजतुल कुबरा, जिनकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन, ये उस हुसैन के लाशे को बुलंद करके अल्लाह से दुआ फरमा रही, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ा क़लील क़ुरबान, परवरदिगार हमारी इस कलील से कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ज़ैनब आलिया का किरदार देखते जाइए कि फिर इमाम सज्जाद जब एक मरतबा गश खाकर गिर गए वहां पर तो बीबी फरमा रही है, सज्जाद खड़े हो जाइए, मैं आपको बता रही हूँ कि कल को ये जगह इश्क का मरकज बनेगा। यानी वो जिस इमामत ने मुहाफिजत करनी है, अगर उसकी भी कोई मुहाफिजा है तो वो ज़ैनब आलिया, बिल्कुल ये कल ये जगह इश्क का मरकज बनेगा, क़िबला इश्क बनेगा। बीबी ज़ैनब आलिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को पता चले कि अगर एक अल्लाह की राह में एक मर्द अपनी जान, अपना सब कुछ अल्लाह पर कुर्बान कर दे तो एक खातून किस तरह से खड़ी होती है, वो जान साजी, वो शहामत का मकाम किस तरह से आता है। बीबी ज़ैनब आलिया को देखा जाए कि बीबी खड़ी हुई तमाम मसूरात को शाम गरीबा से, बल्कि इससे भी पहले से मैं कहूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मशवरा कर रहे बीबी ज़ैनब आलिया से, जो इमामत की मुशावरा हो उसे ज़ैनब आलिया, वो इल्मियत की किस मकाम और मंजिलत पर होगी। ये एक जुमला ही उनकी इल्मी तारुफ को बहुत है कि वो ज़ात, वो मजरूह ज़ात, यानी वो जख्मी ज़ात, यानी हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने रूहानी तौर पर जख्मी हो गए होंगे वो मस्तूरात जो इन कटे हुए सरों के हमराह चलती चली जा रही हैं और कूफे और शाम की राहों को तय कर रही हैं, और फिर दीगर आगे की मनाजिल हैं जिन पर हमारी ज़िंदगी और सांसें कम पड़ जाती हैं उन्हें महसूस करने के लिए। बहरहाल, लेकिन ये मनाजिर देखने के बाद जो वापस मदीने तशरीफ लाए और वो ज़ात से पूछा जाए कि आपने क्या देखा, तो बड़े तहम्मुल के साथ अली की बेटी होने का मुजाहिरा करते हुए कहने लगी, मा राइतु इल्ला जमीला, मैंने सिवाय जमाल के कुछ नहीं देखा। और जब फलसफे में या कुतुब में या उनकी वरकगर्दानियां की जाए और उलमा से जानो अदब तय करके हमने पूछा कि जमाल किसे कहते हैं, ये कौन है जो करबला में अली असगर के गले से बहती हुई खून की को देखने के बाद भी ये फरमा रही है कि मैंने सिवाय जमाल के कुछ नहीं देखा। तो जहाँ जमाल की क्या तारीफ है, मेरे इल्म में इजाफा हुआ, मैं चाहता हूँ मैं आपकी नजर करूँ तो बड़ी मुख्तसर सी तारीफ मिली कि हर वो शय जो कमाल की तरफ हरकत करती नजर आए उसे जमाल कहते हैं। यानी आप इल्मियत का मयार देखिए कि वो क्या है। और जाहिर है कि जहाँ गुफ्तगू कमाल तक आ गई हो तो मेरी ख्वाहिश है कि शहरी रजा एक कलाम आपसे और सुने हम, कोई कमाल के मिसरे हों। लेकिन इस सवाल के बाद अगर मैं शिराजी साहिबा से पूछूं कि उन मकामात मुक़द्दसा पे आप क्या महसूस करती हैं कि लोग आज भी क्या रिश्ता रखते हैं उस ज़ात से, जब उस हरम में, उस ज़री में लोगों को वहाँ इबादत करता हुआ देखती हैं या साहिब ज़री से गुफ्तगू करते हुए सुनती हैं, तो आपने ख़वातीन में या वहाँ ज़ायरीन में क्या कैफियत पाई जो आप चाहें कि हमारे नाज़रीन तक पहुँचे? कमाल की बात आ गई बीबी के, तो पर्दे में रह के जुल्म के पर्दे उलट गई। वाह। पहनी रस्म तो जुल्म की जंजीर कट गई। लफ्सी लिए तो जब्त में दुनिया सिमट गई। और बोली तो पत्थरों को पिघलना सिखा गई। इंसान को लफ्ज़िशों में संभलना सिखा गई। बीबी ज़ैनब आलिया, मैं तो यूं महसूस करती हूँ कि जब हम बीबी का हरम मुतहर जो उस मकाम पर है जहाँ पर बादशाही हुआ करती थी, जहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी,
जहाँ पर तख्त भी उन्हीं का था, ताज भी उन्हीं लोगों का था, सिपाह भी उनकी थी, नेजे और तलवारें भी उन्हीं शकीयों के थे बज़ाहिर, लेकिन आज दिलों पर हुकूमत करती है बीबी ज़ैनब आलिया। और बीबी के वो अल्फाज कि जब बीबी वहां पर पहुंची थी और फिर इमाम सज्जाद को जब इजाजत नहीं मिली थी जाहिरी तौर पर लोगों से कलाम करने की, तो बीबी ज़ैनब आलिया खड़ी हुई थी और आपने मजमे को बेदार किया था और फिर इमाम सज्जाद को मुखातिब करके कहा था, खुद या सैयदी या मौलाई, ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे मौला, क्योंकि उन्होंने एतराफ किया अली की बेटी की अजमत। पहले आपने अपनी अजमत को मनवाया, उसके बाद का तुम मेरी अजमत का इकरार करते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरा भी इमाम है, ये मेरा भी सरदार है, ये मेरा भी आका और मौला है। और इमाम सज्जाद खड़े हो और मौला के वो अल्फाज की जब उनको ललकार रहे थे, ये वही जगह थी कि इमाम सज्जाद फरमाते ओ दीनल इल्म वल इल्म, हमें इल्म अता हुआ, हमें हिल्म अता हुआ, व सबाहता व फसाहता व शुजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। बीबी ज़ैनब आलिया ने भी फरमाया कि हम वो हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें इल्म अता किया, हिल्म अता किया, सबाहत, शुजाअत, फसाहत। नहजुल बलागा की वारिसा बोल रही है कि फसाहत अता की परवरदिगार आलम ने, वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। ए यजीद, जिस्मों पर राज करना और होता है, दिलों पे राज करना और होता है। हम दिलों पर बीबी ज़ैनब आलिया की आज देखिए ना, हुकूमत के बीबी ने कहा था यजीद कल को यही शहर होगा लेकिन हुकूमत मेरी होगी, उन्हीं का शहर है जहाँ पे उनकी हुकूमत थी। लेकिन आप जाइए जगह जगह लिखा होगा, आप भी जाहिर बीबी है, हम तमाम लोग, अल्लाह करे मेरी पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से दुआ है कि जो लोग नहीं गए वो जाएं और जो गए वो बार बार जाएं, जाकर महसूस करें उस कैफियत इश्क को, उस कमाल की मंजिल को, मारिफत खुदाबंदी को, हक की सरबुलंदी को महसूस करेंगे कि बीबी ने फरमाया था कल को यही शहर होगा लेकिन रोजा हमारा होगा, नाम हमारा होगा, जगह जगह बोर्ड नस्ब है, इन द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज है। अच्छा शहीद रज़ा साहब, जाहिर है कि ये ललकार, यानी जब उनका जिक्र करने में जो ललकार इनमें महसूस हो रही है, हम तो इससे अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उस ललकार की नोयत क्या होगी कि भरे दरबार में जालिम को ललकारा जा रहा है और तख्त नशीन को ललकारा जा रहा है, जो बादशाह है, जो इख्तिदार में है। बहर कैफ ये लहजा तभी आ सकता है जब किरदार दस्ते बतूल से संवरे हुए हों, जब निगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के परखे हुई शख्सियात को जो है वो भेजा जाए मकातिल के अंदर, अपने अपने मक्तल में भेजा जाए कि जाओ इन्हें सजाओ। तो जाहिर है कि हम उस हस्ती की तरफ आ गए, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि देखिए इनकी गुफ्तगू से भी यही मैं महसूस कर रहा हूँ कि जनाब आलिया मुकाम यहाँ से लेके शाम तक जो सफ़र तय करती रही, वो बात बात में बहाने बहाने से किसी न किसी हवाले से कायनात को हुसैन इब्न अली का तारुफ करवाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश नाज़रीन की तरफ से भी यही होगी कि अगर निगाह जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा से हुसैन इब्न अली को देखा जाए तो हुसैन कितना हसीन नजर आता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि शहरी साहब आप जो है ना इमाम हुसैन की शान में कुछ नजर करें, जो कि निगाह ज़ैनब कुबरा में हुसैन कैसे, जो पूरा मैसेज है करबला का, वाह, और जो आपने कहा कि सैयदा पाक सही, जाहिर सी बात है सारी करबला हम तक पहुंची उनसे जी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जरिए हम तक पहुंचाया कि करबला, यानी करबला की बका की अगर कोई इल्लत है तो वो ये हस्ती है, इल्लत मुबकिया। कोई हुसैन सा सजदा वाह भला अदा तो करे, वाह अदा तो करे, कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे, के रश्क जिस पे सदा खाके करबला तो करे, कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे, कहाँ से लाओगे ऐसा जिगर जो दी के लिए, कहाँ से लाओगे ऐसा जिगर जो दी के लिए, असर से पहले बहत्तर, असर से पहले बहत्तर को जो जुदा तो करे, कोई हुसैन सा सजदा
भला अदा तो करे। मैं बाप को बेटा हूँ गो के असगर हूँ, मैं बाप का बेटा हूँ गो के असगर हूँ, कहो लई से सितम की, कहो लई से सितम की, वो इंतहा तो करे। कोई हुसैन सा सजदा भला अदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज था। ख़वातीन में एक बच्ची है, आपने तज़किरा फरमाया हज़रत अली असगर की ज़ात का, आपने भी गुफ्तगू फरमाई, लेकिन देखिए उस एक ज़ात है जो जिसके कानों से लहू बह रहा है और उसके रुखसारों की रंगत शाम की राहों में तब्दील होती रही है। और अगर 4 कदम पर ज़ैनब आलिया ने देखा है ये मंजर, 70 कदम पर, तो 4 कदम पर कोई बेटी भी तड़पती रही है। ये कैसे हो सकता है कि इंसान का दिल इतना सख्त हो जाए, मखलूक इतनी सफाक हो जाए कि उन सिस्कियों को नजरअंदाज कर दे। तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि आप छोटी बच्चियों के हवाले से भी अगर वो करबला से कोई दर्स लेना चाहती हैं तो इस बच्ची का तज़किरा करें कि वो हुसैन इब्न अली की लाडली बेटी कौन है। इस्लाम ने तो वैसे ही बच्चों को बड़ा मासूम बनाया है। आम बच्चे की का ये मकाम और मर्तबा इस्लाम ने तय कर दिया, तो सोचिए कि खानवादा रिसालत के बच्चों का क्या मकाम होगा। और वो बीबी जो रसूल अल्लाह के सीने पर जो हुसैन सोता था, उस हुसैन के सीने पर जो बेटी सोती थी,